بلکہ سازش تو پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے۔ پہلی سازش، دوسری سازش، عمران خان صاحب کہتے ہیں تیسری سازش، چوتھی سازش۔ میں نے آپ سے کہا تھا ٹھپا ٹھپا ٹھپا، آپ یہ لگاتے جائیں۔ خود کو اس امتحان سے بچانے کے لیے جنرل فیض حمید نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ پہ پلسٹر چڑھا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ چار اہم ترین معاملات ہیں، چاروں کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک معاملہ یہ کہ ملٹری ٹرائل سے، ملٹری عدالت سے اندر جو تفتیش ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اس سے خبریں کیسے باہر آ رہی ہیں۔ جو تفتیش سول اداروں میں ہوتی ہے وہاں تو ہمیں اندازہ ہے کہ لوگوں کے سورسز ہوتے ہیں، وہاں لوگ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، اپنا نام چلوانا چاہتے ہیں، اپنی خبر چلوانا چاہتے ہیں، تو وہ خبر لیک بھی کر دیتے ہیں، صحافی اپنے سورسز یوز کر لیتے ہیں اور خبر باہر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، اس سے خبریں کیسے باہر آ رہی ہیں، کیا خبریں باہر آ رہی ہیں، یہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید گرفتار، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، پاکستان کی اپنے وقت کی طاقتور ترین شخصیت، ان کے بارے میں اب اندر ادارے میں کیا ہو رہا تھا۔ بعض صحافی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جب وہ مختلف عہدوں سے ہوتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بنے تو اندر کیا ہو رہا تھا۔ اب اگر صحافی اس بارے میں دعوے کر رہے ہیں تو اگین کچھ سوالات ہیں جو بہت اہم ہیں، اور یہ سوالات اٹھانا بہت ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تیسرا، شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے علاوہ بہت اہم معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد اور موجودہ صورتحال میں کچھ باتیں کی ہیں، ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے وہ رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جنرل فیض حمید کی فوجی عدالت میں جو تفتیش ہے اس سے خبریں کیسے نکل کر آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیض حمید گرفتار ہوا ہے اس سے میں بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میں ڈرتا تو میں جوڈیشل کمیشن کی بات کیوں کرتا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف یہ کہتا ہے کہ سارا معاشی نظام پی ٹی آئی نے خراب کیا اور ہم پر الزامات لگائے۔ نواز شریف کے الزامات پر صرف اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیں، نون لیگ والے $19.5 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گئے، اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ میں آپ سے اسی لیے کہتا ہوں عمران خان بہت مختلف ہے، ہمارے روایتی سیاستدانوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی اکنامک سروے آف پاکستان، اس کے اعداد و شمار، ان پر باتیں کر رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آج بھی میرے 4 سال اور میاں نواز شریف صاحب بیسک سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اور اسی لیے ایک ایسی پریس کانفرنس کی جو ریکارڈڈ تھی اور اس میں ایڈیٹنگ تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے وہ باتیں کی۔ عمران خان صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید نے 9 مئی کی سازش کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ سازش تو پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے۔ پہلی سازش یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کے کہنے پر فیض حمید کو ہٹایا۔ دوسری سازش یہ تھی کہ ہماری حکومت میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے حسین حقانی کو $35,000 میں لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ حسین حقانی کے بعد ڈونلڈ لو کا معاملہ آیا اور ہماری حکومت گرا دی گئی۔ چیف جسٹس کو انکوائری کا کہا، لیکن بجائے انکوائری کے ہم مظلوموں پر سائفر کا کیس بنا دیا گیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں تیسری سازش 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ کیس 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، صرف یہ پتا کروائیں کہ میری گرفتاری کا حکم کس نے دیا اور CCTV فوٹیج سامنے لے آئیں۔ ہمارا مطالبہ ہے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دی رہی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف چوتھی سازش 8 فروری کا الیکشن تھا جس میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم الیکشن چوری کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ملک میں سب کچھ یک طرفہ چل رہا ہے، یہ سب کچھ چیف جسٹس کو توسیع دینے اور 2/3 اکثریت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز نے ہماری مزید وکٹیں گرا دی ہیں، 19 اگست کو ایک اور وکٹ گر سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 19 اگست کو اگر یہ ہو گیا تو کل 5 مزید سیٹوں سے محروم ہو جائے گی۔ تو جو حکومت کے ہاتھ سے مخصوص نشستیں گئی تھیں وہ یہاں سے پوری کرنے کا سلسلہ جاری۔ میں نے آپ سے کہا تھا ٹھپا ٹھپا ٹھپا، آپ یہ لگاتے جائیں،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थैले खोलें जहां उनको वोट मिलाए, बैंगन को, खीरे को, घड़ियाल को, चारपाई को, झूले को, उस पर एक एक और निशान पे मोहर लगाएं। वोट खराब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट अगर इलेक्शन जीतते वक्त 1,00,000 थे तो वो 90 हो जाएंगे, मुखालिफ के वोट वही हैं और मुस्तरद वोटों की तादाद बढ़ जाएगी उतनी जितने पीटीआई वाले के वोट कम हुए। ये आसान फार्मूला है, मजीद हलकों में अपनाएं, नून लीग को सारी की सारी सीटें मिल सकती हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बुशरा बीबी घर से ही नहीं निकलती, उन्हें 9 मई के मुकदमात में मुलजिम बना दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूं, आप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $500 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। भारत की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट $160 अरब है। पीटीआई को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। अदालत जब आइन के मुताबिक फैसला करे तो हुकूमत नहीं मानती, फिर सरमायाकारी कैसे आएगी, कर्ज लेने से महंगाई बढ़ेगी और मुल्क डूबेगा। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। अब आप एक चीज देखिए, हमारे बात सहाफी कहते हैं इमरान खान अडियाला जेल में बैठा हुआ मीडिया से बात कर रहा है, इंटरनेशनल आर्टिकल लिख रहा है। इमरान खान इंटरनेशनल आर्टिकल्स के अलावा सवाल भेजे जाते हैं, वहां से इंटरनेशनल इंटरव्यूज दे रहा है। नवाज शरीफ को ये सहूलतें मयसर नहीं थी। नवाज शरीफ साहब तो बाहर भी आ सकते थे, इमरान खान को तो बाहर नहीं लाया जा रहा। तो ये अपनी चॉइस है। कोई जेल में बैठकर कहता है ठीक है मेरे प्लेटलेट गिराओ, मुझे बाहर निकालो। कोई जेल में बैठकर कहता है ठीक है मेरी बेटी को लाओ, मेरी खानदान के दीगर लोगों को लाओ, मेरी उनसे मुलाकातें करवाओ और मेरे कमरे का एसी मत उतारो वरना मेरे गुर्दों का डायलिसिस करना पड़ेगा। और कोई जेल में बैठता है और बैठकर बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज देता है, इंटरेक्शन करता है, किताबें पढ़ता है। ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं। चॉइस यह है कि आपको वहां बैठकर देसी खाने खाने हैं, या चॉइस यह है कि आपको वहां बैठकर एक्सरसाइज करनी है, खुद को फिट रखना है, मेंटली भी फिजिकली भी, जिसके लिए आप किताबें भी पढ़ते हैं। तो इमरान खान की चॉइस नवाज शरीफ की चॉइस के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस आपको नजर आ रहा है कि वो टिपिकल लाओ खिलाओ बैठते जाओ, और इमरान खान की चॉइस मुख्तलिफ है। इमरान खान इज स्टिल फाइटिंग वहां जेल के अंदर बैठकर भी, तो इसलिए आपको ये चीजें इस तरह से नजर आ रही हैं। अब आ जाइए कि जनरल फैज हमीद के हवाले से खबरें लीक कैसे हो रही हैं। ये एक सहाफ़ी हैं तंजीला मजहर साहिबा, और तंजीला मजहर साहिबा जो हैं वो GTV के साथ काम कर चुकी हैं, PTV के साथ काम कर चुकी हैं। एक मुनासिब नाम है तंजीला मजहर साहिबा का, और एक बड़ी रिप्यूट की खातून है। तंजीला मजहर साहिबा ने खबर दी, अहम ज़राए के मुताबिक जनरल फैज हमीद के खिलाफ तफ्तीश में बुशरा बेगम के खिलाफ भी शवाहिद सामने आए हैं। जनरल फैज और इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी भी इस सारे मामले से बराह रास्त जुड़ रही हैं। इमरान खान से बहुत सारे फैसले जनरल फैज ने बुशरा बेगम के जरिए करवाए। वो दोनों जानिब के मुफादात के लिए अपना रूहानी असर इस्तेमाल कर रही थीं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये तफ्तीश हो रही है फौजी अदालत में। आम तफ्तीश नैब की, वहां से खबरें लीक होती हैं, नैब वाले एक्सेस में होते हैं। क्या फौजी अदालत के मिलिट्री ट्रायल के लोग, फौजी अहलकार एक्सेस में हैं? यह मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे सहाफ़ी जो खबरें दे रहे हैं, या ये खबरें इन सहाफ़ियों तक कोई पहुंचा रहा है हुकूमती शख्सियात में से, और क्या जनरल फैज हमीद के मिलिट्री ट्रायल की खबरें हुकूमती शख्सियात तक पहुंच रही हैं? इस सवाल का जवाब आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिलिट्री ट्रायल है। इसके कंक्लूड होने पर हमें इसका नतीजा मालूम होगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं और लोग ये बता रहे हैं कि जनरल फैज हमीद ने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, ये एक के बाद एक डे टू डे इन्वेस्टिगेशन की मालूमात अगर सहाफ़ी बता रहे हैं तो बड़ी हैरान कुन चीज़ है मेरे लिए कि ये कैसे मुमकिन है। इतनी तो सिविल तफ्तीश में चीज़ें सामने नहीं आती जितनी मिलिट्री ट्रायल में होने वाली चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। बड़ा हैरान कुन है। अब ये सहाफ़ी खुद कर रहे हैं या हुकूमती शख्सियात इन तक पहुंचा रही हैं या अंदर से इन तक ये खबरें आ रही हैं, सवाल का जवाब सामने आना चाहिए, क्योंकि वहां से खबरें निकल के आना बड़ा हैरान कुन है। और इसके बाद आप देखिए जनरल फैज हमीद साहब, अब पाक फौज का डिसिप्लिन इदारा, उस पर लोग बैठकर सवाल उठा रहे हैं। मैंने ये जनरल परवेज मुशर्रफ के 2 इंटरव्यूज में भी उनसे बात की थी, और मैंने उनसे बात करते हुए कहा था कि इस इदारे का डिसिप्लिन बेहतरीन है, लेकिन जब आपने गालिबन 6-7वें नंबर पर होते हुए वो ओहदा कबूल किया जो पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा ओहदा है, तो आपने अपने सीनियर्स के साथ क्या किया था, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो ये उस चैनल ने सवाल उड़ा दिया था।
अब मैं आपसे अर्ज करूं, मोहसिन बेग साहब बैठे और मोहसिन बेग साहब ने न्यू न्यूज पर बैठकर नसरुल्लाह मलिक साहब के सामने कहा है कि जब मैं फैज हमीद के गांव पहली बार गया तो मैंने देखा कि एक 8 मरले का मकान है। कुल कराची में समझ लें आप कि ये कोई 200 गज का मकान होगा। 8 मरले का मकान था। मैंने उसकी वीडियो बना ली थी और सोचा था कि ये मैं बीबीसी को दूंगा कि हमारा इतना ताकतवर आदमी वो बैठा हुआ एक 8 मरले के मकान में। मैंने बाजवा साहब को कहा ये बंदा कैसे 8 मरले के मकान से 600 कनाल के फार्म हाउस तक पहुंच गया। तो उन्होंने कहा छोड़ो इन चीजों को। यानी जनरल बाजवा अगर ये जानते थे कि फैज हमीद 8 मरले के मकान से 600 कनाल के फार्म हाउस में पहुंच गया और वो कह रहे थे छोड़ो इन चीजों को, तो ये जनरल बाजवा के पार्ट पे क्या है? ये जो फैज हमीद कर रहे थे, फैज हमीद के पार्ट पे क्या है कि 600 कनाल का घर उन्होंने, फार्म हाउस उन्होंने बना लिया था, घर तो उसके अलावा होगा। फिर वो ये कहते कि जनरल फैज हमीद ने एक ड्रामा किया था और इंटरनल जो इम्तिहान होता है जहां आप अगले ओहदे पे तरक्की पाते हैं, तो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने के लिए जो इंटरनल एग्जाम था अफवाज पाकिस्तान के दायरे में, उस इम्तिहान में जवाबात लिखने थे, इंग्लिश लिखनी थी। और मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि खुद को उस इम्तिहान से बचाने के लिए जनरल फैज हमीद ने यह किया कि अपने हाथ पे प्लास्टर चढ़ा लिया और प्लास्टर चढ़ा के जनरल फैज हमीद ने कहा कि मैं नहीं लिख सकता, मेरी जगह कोई और लिखेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये किया था। अब अगर ये अफवाज पाकिस्तान के दायरे में हो रहे तो मोहसिन बेग क्या इल्जाम लगा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वहां ये सब कुछ हुआ है। वो उसके बाद भी कहते हैं कि आप जनरल फैज हमीद की गुफ्तगू सुन लीजिए, उनकी इंग्लिश सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी काबिलियत क्या थी। तो मैं बड़ा हैरान हूं इन तमाम चीजों पर कि वो ये क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बात की। वो कहते हैं कि फैज हमीद पाकिस्तान में प्यूटिन मॉडल लाना चाहते थे, यानी जैसा रशिया में प्यूटिन ने किया। तो वो कहते हैं वो भी एक खुफिया इदारे का हिस्सा था, ये भी खुफिया इदारे का हिस्सा था। ये पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को कैप्चर करना चाहते थे फैज हमीद। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन्होंने शादी कैसे की, उस खानदान में कैसे घुसे, यहां तक बातें हो रही हैं। ये जब पकड़े गए हैं तो हमारे सहाफ़ी अंदर वहां जो निज़ाम है उस निज़ाम पर ये सवालात उठा रहे हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये आमतौर पर होता नहीं है। तो इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें इन सहाफ़ियों को कहीं से मिल रही हैं, दे रहे हैं, और ये बातें जो कर रहे हैं और जो चैनल्स कर रहे हैं ये किस तरह से मुमकिन है। इसके अलावा कुछ सहाफ़ी एक खातून पर, लिबास पर, बेलिबासी पर, इबादत पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी ये वो घटिया तरीन बातें हैं कि मैं इनको इन 4 लफ्ज़ों में भी अगर बयान कर रहा हूँ तो मुझे अफसोस है कि मैं उनको रिपोर्ट करते हुए क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो ये कर रहे हैं। और यही सहाफ़ी जो है वो खबरें दे रहे हैं अंदर की। ये कैसे हो रहा है, ये बड़ा हैरान कुन है मेरे लिए। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करूं, शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, उनको बैरिस्टर गौहर लेकर गए थे और इमरान खान साहब ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत भी खत्म कर दी गई थी और कहा गया था कि शेर अफजल मरवत इस्तीफा दे दें रुकने कौमी असम्बली के तौर पर भी, और अब उन्हें ये ओहदा भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। मरवत साहब ने कहा था मैं इमरान खान साहब से भी मुलाकात करना चाहूंगा, मैंने बैरिस्टर गौहर को तमाम इख्तियारात दे दिए, मैं रुकने कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा देने से पहले अपने इलाके के लोगों से बात करूंगा और उनसे बात करके कहूंगा कि आप बताइए आपका फैसला क्या है, मैं बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा दूं या ना दूं। और उन्होंने कहा था मैं अगर छोड़ गया तो मुर्शिद के कहने पर छोड़ जाऊंगा, फिर मैं पाकिस्तान ही छोड़ जाऊंगा। वो शेर अफजल मरवत आज पहुंचे अडियाला जेल और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। बाहर आकर शेर अफजल मरवत साहब ने क्या बताया, वो ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब से हाथ मिलाया, इमरान खान साहब मुस्कुराए, मैं गले भी मिला हूं और चीजें ठीक हो गई हैं, मेरे केस में चीजें ठीक हो गई हैं। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि मैंने इमरान खान साहब को बहुत सी चीजों का यकीन दिला दिया है। आगे शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि मैंने पार्टी में भी जो अपने लोगों के साथ किया, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से उन्होंने इल्जामात लगाए कि टाउट है, गद्दार है, पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स की खबरें देता है। वो कहते हैं जो भी मैंने किया था और मुख्तलिफ लोगों पर इल्जामात लगाए थे, उमर अयूब पर भी, शिबली फराज पर भी, मैं तमाम लोगों से कहता हूं कहा सुना मुआफ कर दीजिए। ये थी अब तक की सूरत हाल। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाकयात,
بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔